इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द इरा ऑफ बालबन फ्रॉम 1246 to 1287. After the death of Rajia Sultan, Bahram Shah and Masood ruled over Delhi. But before there was a because there was a tussle between the sultans and the nobles, जो बहराम और मसूद का रूल था that was not stable. इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए the Balban succeeded in putting Nasiruddin Muhammad, the younger son of Iltutmish, as the Sultan. Or till death, Nasiruddin Muhammad was the king. Era of Balban, जो गयासुद्दीन बलबन था, he was known also known as Ulugh Khan, जिसने who served as a naib or the regent to the Sultan Nasiruddin Muhammad because he played a vital role installing the Nasiruddin Muhammad as the king in the Delhi Sultanate. He also strengthened his position by marrying his daughter to the Sultan. Balban was all powerful in administration, but he has to face the intrusions of his rivals in the royal court. जो मेन प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिखी है, तो इल्तुतमिश ने एक चहलगामी द ग्रुप ऑफ 40 क्रिएट किया था, द 40 पावरफुल नॉबल्स का ग्रुप, जिसको चहलगामी बोला जाता है, ग्रुप ऑफ 40. वो क्या करते थे, दे डोंट वांट द किंग टू बी पावरफुल, दैट इज़ द मेन कॉज. ओके, और वो क्या करते थे, बार बार किंग के रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, या इंट्रूजर्स का मतलब आप समझ सकते हो कि कुछ भी क्रिएट कर देना. ही हैड ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज. 1266 के अंदर आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन असेंडेड द थ्रोन. यहाँ से बलबन का रियल रूल शुरू होता है 1266 से. Before 1266, he was ruling indirectly, but after 1266, he started to rule directly. And because Chehelgami was a main problem for the king, so what he will do? He will try to eliminate. This group of 40 by hook or crook. So this is the strategy adopted by him. यही चीज़ आगे इसमें एक्सप्लेन की गई है. दिल्ली Balban experience as a regent made him to understand the problem of Delhi Sultanate. He know very well the problem created by the group of 40s, the 40 nobles. Power of authority enhance करने के लिए monarchy, he has to reduce the power of Chehelgami. According to Balban, तो बलबन ने एक यहाँ से थ्योरी यूज की, the God shadow, that Sultan was the God shadow on earth and recipient of the divine grace, so you cannot challenge the God. Okay, उसने किंग को गॉड के साथ इक्वेट कर दिया कि आप जैसे आप गॉड को चैलेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चैलेंज द सुल्तान ऑल्सो. बलबन इंट्रोड्यूस रियल कोर्ट डिसिप्लिन एंड न्यू कस्टम्स लाइक प्रोस्टेशन एंड किसिंग द सुल्तान फीट टू प्रूव हिज सुपीरियोरिटी ओवर द नोबल्स. तो उसका जो भी ये प्रोस्टेशन और सुल्तान फीट को किस करने का जो भी ये उसने कस्टम्स तैयार किया गया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जो 40 चहलगामी हैं, ये अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, बट एक्चुअली दे आर अंडर द किंग. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द प्रशियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज टू इम्प्रेस द नोबल्स. एक तरह से तो उसने उनकी पावर को कम करने की कोशिश की, दूसरी कहा कि मैं तुम्हारे कस्टम्स को फॉलो करता हूँ, तो उसने नवरोज का एक फेस्टिवल शुरू किया, और ये नवरोज का फेस्टिवल 2016 के अंदर यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड कर दिया गया है. Although that is not directly related with India, that is Prussian, Turkish से related है. People with his wealth and power. He stood forth as the champion of Turkish nobility. At that time, he did not share power with other nobles. Indian Muslims were not given the important post in the, and as usual, the main pillar of the administration are the spies. So he appointed spies to monitor the activity of the nobles. Balban was determined to break the power of the 40 and the Turkish noble. He spared only the most obedient nobles and the eliminate other by fear or foul means. वही था, चहलगामी को हटाना था, चाहे कैसे भी करके हटाओ. जो मलिक बकबाग था ना, the governor of Badaयूं, was publicly flawed for his cruelty toward his servant. Hebayat Khan, the governor of Awadh,
ये नाम याद रखने हैं क्योंकि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया ना तो ये आपको टैग करने हैं। द गवर्नर ऑफ अवध वॉज ऑल्सो पनिश फॉर किलिंग अ मैन हु वॉज ड्रंक। उसको सिर्फ इस वजह से पनिश कर दिया गया, ही पनिशमेंट फॉर किलिंग अ मैन हु वॉज ड्रंक। शेर खान जो बठिंडा गवर्नर था उसको जहर दे दिया गया। इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग हिज किंगडम, द किंग, जो बलबन की जो मेन पॉलिसी दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ लॉ और एंड ऑर्डर, उसने एक्सपेंशन की बजाय लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने पे ज़्यादा ध्यान दिया। ही इस्टेब्लिश अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अरीज। ये दीवाने अरीज यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। और क्या था दीवाने अरीज? दैट इज मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड रिकॉग्नाइज द आर्मी। उनके टाइम के अंदर क्या था, मेवाती वॉज क्रिएटिंग द हैवक, जो भी आता था उसको लूट लेते था आउटसाइड द दिल्ली, क्योंकि जो मेवात का एरिया है वो दिल्ली के साथ लगता हुआ एरिया है। तो बलबन took a severe action against them and prevented such robberies. Robbers were mercilessly pursued and put to death. इसकी वजह से क्या हुआ, जो रॉबरी थी वो कम हुई और जो रास्ते थे वो ट्रैवलिंग के लिए सेफ हुए। और ट्रैवलिंग अगर सेफ हो गए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेड होता था रोड के थ्रू होता था, तो आपका ट्रेड फ्लोरिश करेगा। और ट्रेड फ्लोरिश करेगा तो इट बूस्ट योर इकोनॉमी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन. So that has the impact over it. In 2079, Tighril Khan, the governor of Bengal, revolted against the Balban. He suppressed and he was beheaded. इसका सारी काट के इसको रफा दफा किया. In the northwest, the Mongol reappeared and the Balban sent to his son Prince Muhammad against them. But the prince was killed in the battle and it was a moral blow to the Sultan. And later, in 1287, Balban was died. He was undoubtedly one of the main architects of the Delhi Sultanate. He consolidated the Delhi Sultanate by raising the power of the Sultan and by reducing the power of his Chehalgami, creating a military department. He enhanced the power of monarchy, although he could not fully safeguard India from the Mongol invasion. When Balban died, फिर उसका जो grandson था Kakubad was made the Sultan of Delhi. But after the 4 year of incompetent rule, Jalaluddin Khilji captured the throne in the 1290. तो यहाँ से खिलजी डायनेस्टी शुरू होगी 1290 से, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसकी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी वीडियो सीरीज़ हमारे चेक कर सकते हो। आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू। और उसके साथ हमारा जो यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी भी साथ के साथ अटैच कर दिया गया है। यूपीआई आईडी से अगर आप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी हमारे इस इनिशिएटिव के लिए कर सकते हो, सो दैट वी कैन प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. I'm extremely thankful to you. Kindly share it wherever you can share it. Thank you.